Dear students, good morning to all of you. I had already sent one PDF having two programs. One is to find out any numbers factorial and another one to find whether a number is prime number or not prime number. Two program I sent and I hope that you have gone through the PDF. So the first question was to input any number, to input any number and check and find its factorial. So this is the question number 1, in which we have to input any value at the time of the execution of the program. जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या फिर ऐसे ही मतलब स्टैटिक से, तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंप्यूटर आपसे एक नंबर मांगेगा, कोई भी नंबर आप दीजिए और ये आपको उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो हम इनपुट करते हैं, सपोज हमने इनपुट किया 5, ये 5 फैक्टोरियल, अब 5 हमने इनपुट किया तो इसका फैक्टोरियल वैल्यू जो होता है वो होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो आंसर आएगा 120। दिस इज द फैक्टोरियल वैल्यू। सपोज आई इनपुट हियर 4, so the factorial value will be 1 into 2 into 3 into 4 equal to 24. So this value you are getting now, it is known as the factorial value of the input number, right? So like that, if you input any number 10, 20 or 5 or 6, so you will get this factorial value, right? So the solution is class factorial. Then public void input integer n। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम फैक्टोरियल होगा या फैक्ट होगा या उससे रिलेटेड कोई भी आप प्रोग्राम उसके क्लास का नाम बना सकते हैं। मेथड लाइन होगी, यहाँ पे हमको डायरेक्ट 12 इनपुट करवाना है मेथड में, तो वाइड इनपुट इंट n होगा। इसके बाद इंट f equal to 1, f equal to 1 means I will store the value of the factorial value in variable f, और एक हम बना दिए i, ओके। इसके बाद लूप चलाएंगे फॉर i equal to 1, i less than equal to n, i plus plus, then fact equal to, sorry this is f, so we have to write here f equal to f into I. After that this bracket will be closed, then system out println factorial of n equal to plus f, then method close and class close. So this is the code of the program in which we have to input any number. ये उस प्रोग्राम का कोड है जिसमें हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ओके। अब ये उसका कोड, अब इसको हम ट्रेस करेंगे। ट्रेसिंग इज द फाइंडिंग एरर और रनिंग द प्रोग्राम ऑन द बोर्ड, कि अगर हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम कंप्यूटर पे नहीं बैठे हैं इस टाइम, तो हम उसको प्रोग्राम को लिख के कॉपी पे या बोर्ड पे हम कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम सही है या गलत है। जब हम इसको लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसका आंसर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। So dear, this is class factorial, 100% correct. This is the name of the class. This is public void input
at the time of execution you have to give any value. Suppose you give here 4, that time you give the value 4, so the value of n will be 4 there. इसके बाद f equal to 1, this is 1. ये 1 हम इसलिए बनाया है क्योंकि जब हम अगर 0 बनाएंगे f equal to 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमने उसको मल्टीप्लाई किया है. मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, अगर f की वैल्यू 0 है और i की वैल्यू कोई भी हो, तो अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट हमारा हमेशा 0 आएगा अगर उसमें से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू 0 है. यू आर वेरी एक्सपर्ट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 विद एनी अदर वैल्यू. ओके, राइट. So this is my dear, this is f equal to 1 and I for loop I have created here. This is I equal to 1. This is the initial value. First time the computer will read this statement, is this expression of for statement. After that it will check its condition. I less than equal to n. So the value of n is 4. Here also it will be 4. So I equal to 1. The starting value of I is 1. It is less than 4, so condition is true. Now your control will come inside of this block. F equal to f into I. So the value of f is 1. The value of I is 1. So 1 into 1 equal to 1. So this is product and it will be stored in variable f. Okay. After multiplying two values, the product you are getting, that will be stored in variable f. Okay. Now your control will come to the next line. यहाँ पे आएगा और ये वाला ब्रैकेट फॉर लूप में इसको वापस भेज देगा लूपिंग स्टेटमेंट. जब यहाँ से वापस आएगा तो सबसे पहले अपडेट पे पहुँचता है. जब भी आपका कंट्रोल रिटर्न होता है फॉर लूप पर तो आपका जो कंट्रोल है वो ऑपरेशन के लिए आता है. इसकी वैल्यू आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि आई में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है. फिर चेक करेगा 2 लेस देन 4 तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू. 2 4 से कम है. फिर इस ब्रैकेट में आएगा i की वैल्यू है 2 और f की वैल्यू है 1. 1 into 2 करेगा तो इसको प्रोडक्ट मिलेगा 2 और इसको फिर से f में स्टोर कर देगा. फिर यहाँ से वापस जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3. कंडीशन अभी ट्रू है तो f की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू 3 है तो 3 2 6. मल्टीप्लाई करने के बाद में इसकी वैल्यू फिर f में स्टोर कर देगा तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. फिर यहाँ से वापस जाएगा i की वैल्यू 4. कंडीशन i लेस देन इक्वल टू n तो i की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है तो 4 से छोटा नहीं है लेकिन उसके बराबर है. इसका मतलब होता है either less than or equal to this number. So 4 less than or equal to कंडीशन ट्रू. फिर इस ब्रैकेट में आएगा f की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 तो आंसर आएगा 24. फिर इसके बाद वापस गया यहाँ से तो i की वैल्यू हो जाएगी 5. अब i की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 4 है. 5 ना तो 4 से कम है ना उसके बराबर है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स. जब ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा तो आपका कंट्रोल पूरे लूप बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से बाहर आ जाएगा. और जो नेक्स्ट लाइन है इसको प्रिंट करेगा. सिस्टम और प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ, ये डबल कोटेशन मार्क में है, ये ऐसे ही स्क्रीन पे आपको आंसर मिलेगा. फैक्टोरियल ऑफ प्लस n, यानी कि प्लस n. इसको प्रिंट करने के बाद प्लस का मतलब होता है प्रिंट लाइन में इसको प्रिंट करने के बाद इसको भी प्रिंट करना है तो उसको हम प्लस से ऐड करते हैं प्लस n. अब देखिए n डबल कोटेशन मार्क में नहीं है तो इसका मतलब एक वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी. n की वैल्यू कितनी है 4 तो लिख के आएगा फैक्टोरियल ऑफ 4. फिर देखिए डबल कोटेशन मार्क में इक्वल लिखे हैं हम, इसका मतलब इक्वल सिंबल एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट चाहिए तो ऐसे स्क्रीन पे आएगा. लिख के आएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू प्लस f. ये डबल कोट्स में नहीं है इसका मतलब वेरिएबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू होगी. अब वैल्यू यहाँ पे कितनी है 24 तो यहाँ पे प्रिंट करेगा f की वैल्यू 24 एंड दिस इज योर आउटपुट. ओके, this example of 4 we have input here 4. okay, but in case
इफ़ यू इनपुट योर 5, अगर आपने 5 इनपुट किया है तो उस केस में एक बार और चलता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 100 हो जाती, 24 × 5 कितना हो जाता, 120। इस तरह से 6 होता, दूसरा वैल्यू 7 होता, दूसरा वैल्यू। ओके, so this is an important program. You must try twice to understand. Study I sent one PDF and one more program I had sent to study, that is for the prime number. Prime number, you know, a number which is divisible by 1 or itself. Divisible by 1 or itself. अगर कोई भी नंबर सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होता है तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और अपने से और 1 के अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है कोई नंबर तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 5 अपने से डिवाइड होगा 5 से या 1 से, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब 6 है, 6 1 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, तो 2 से ज़्यादा इसके जो है वो आ गए, जो इससे डिवाइड हो रहा है, क्या कहा जाता है उसको, फ्रैक्शंस। जब कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से या 5 से, ठीक है, 1 से या अपने आप से डिवाइड होगा सिर्फ, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। और इसका प्रोग्राम हमने दिया है, PDF दिया है कल, उसको आप समझिएगा, उसको ट्राई करिएगा, कोई डाउट होता है तो उसको भी आप पूछिएगा और इसको भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। सो होप यू विल ट्राई। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।